Hello guys, welcome once again to my vlog. It's been raining since morning. I mean, it's a slight drizzle right now. It's a perfect climate, for trekking, biking, some outdoor activities. And in fact, we had planned some place to go tomorrow. That is a place near Palghar. It's called Kahoj Fort. I mean, maybe 2.5 kilometers from here, the place where I am. But we just got the news yesterday that section 144 has been imposed in Mumbai. I mean, it means you can't travel in groups in Mumbai in public place. So we had to keep it on hold. And I mean, this total monsoon has just gone waste as far as my trekking and biking activities were. Like we had planned few places to go, but nothing materialized. But there's some, I mean, we can just always plan it for some other day, maybe next year. So there was nothing much to do, and I just thought, why not use this time to, pay some special attention to my bike. He deserves it because he has been traveling. He has been helping me out a lot with my biking trips. I mean, a lot of off-roading. And there he is, and so I just thought, why not beautify him. And I've been planning this for quite some time, but I was a bit confused. I didn't know whom to approach, and I've been watching some videos on YouTube, and there's one guy in Rajasthan, Shikar, by the name of V-Rap, and a very talented guy. You can see his work on YouTube. He has given a new life to many old bikes, and I mean, it's worth going to him. I thought if I don't find anyone in Mumbai, then I might as well take a trip to Rajasthan, and I could visit few places. I could go to Ajmer, Jaipur, Jabalpur. I have gone to these places, but not on road. So but I just thought, let me just explore few places in Mumbai where I could get this place. And I've been to Milan Subway. I have been to few people in Andheri, and the type of quotations that they gave me, or the feedback that I got from these people was not, I mean, the vibes, it didn't satisfy me. They were charging too much, like. And just to laminate my tank, I mean, that to half of the tank, they were charging like 1,800, 3,000. I mean, they were just quoting some random rates. फिर वो होता है ना कि कहावत है ना वो कि घर की मुर्गी दाल बराबर. I stay in a place which is famous for all those works. I mean, auto works, bike works. That is Sain Kolivada. So I thought. I mean, सब जगह हार गया, तो मैं सोचा क्यों नहीं वहाँ पर जाके देखें. एंड बिलीव मी, आई फाउंड दिस प्लेस इन साइन कोलीवाड़ा, KGN, एंड द गाय यूसुफ, आई मीन, ही इज़ अ जेम ऑफ ए पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ. और बंदे ने साफ साफ मुझे बता दिया कि सर, मैं आपका टैंक पूरा कवर कर दूंगा. अगर आप पूरा यानी कि सब मडगार्ड या साइड कवर सब ओपन करने जाएंगे तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा. सो ज़्यादा करके स्क्रैचेस जो है वो हमारे टैंक्स के ऊपर आते हैं, और जो फ्रंट का जो व्हील है, तो वो आप देख रहे हैं वहाँ पर जो है, तो उस एरिया जो है वहाँ पर ज़्यादा स्क्रैचेस आते हैं. तो मैंने बोला ठीक है, मुझे कुछ बात उनका लॉजिकल लगा. सो मैं उनके पास गए, और आई मीन, ही हैज़ वंडरफुल गाइज वर्किंग विथ हिम, एंड जाते हैं वहाँ पर, एंड वी विल सी हाउ ही इज़ लैमिनेटिंग माई बाइक. एंड I would suggest all of you कि जाओ उनके पास. He's a, I mean, reasonable guy. मेरा नाम ले लो, he will give you a discount also, and I mean a good discount. So let's go to Sain Kolivada and see what he does to my. So guys, we have reached Sain Kolivada. जो इनका शॉप का नाम है KGN. आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर भी शायद विजिबल होगा आपको. और अभी क्या करने वाले हम लोग ये जो सीट कवर है, पहले सीट कवर निकालेंगे तो ही वो लैमिनेशन पूरा हो सकता है. एंड आई एम गोइंग टू कवर दी फ्रंट साइड ऑफ दी. यू कैन सी द टैंक, यू कैन सी हिम पुटिंग ए स्टिकर सो दैट ये जो पानी मारेंगे वो पेट्रोल में नहीं जाए करके. इज जस्ट गोइंग टू
डालता हूँ ये भी यूट्यूब में हाँ है ना मैप शेपिंग है अभी वो थोड़ा यहाँ पर जो सोप वाटर है इससे पहले अच्छे से क्लीन करेंगे सो दैट अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स या कुछ कचरा होगा तो बिकॉज देन द दोस्त आगे मडगाड़ में भी लगेगा स्टिक ऑन टू द टैंक सो ही इज जस्ट क्लीनिंग इट अप a very professional job. I would have loved to get, have my bike fully laminated, but then I'll just take his advice. Maybe next time I'll go for a full lamination. He's almost done with cleaning the tank. And now we are here. We'll be taking a full sheet. He's just measuring. He is Yusuf. I was speaking about. A very down to earth guy. You can take suggestions from him. और इसमें एक बात बोलने भूल गया कि अगर आप चाहते हैं तो आप कुछ डिज़ाइंस भी कर सकते हैं. अभी मैंने तो सिर्फ ट्रांसपेरेंट लैमिनेशन के लिए बोला है उनको. योर बाइक हैव सम डिज़ाइंस और यू कैन इवन ऑल टुगेदर चेंज द कलर ऑफ द बाइक. बट लेट मी ऐड वन थिंग हियर. चेंजिंग द कलर इज़ एक्चुअली इलीगल बिकॉज आपके जो आरसी बुक होता है उसमें मेंशन किया होता है आपके बाइक का जो कलर होता है वो. एंड सपोज नाउ माइन इज़ गन मेटल. अगर समझो मैं इसको पूरा चेंज करके कोई रेड कलर या कोई पीला कलर ऐसा कुछ डाल देंगे तो दैट मीन्स दैट इज़ इलीगल. सो इसीलिए मैंने टू जस्ट गेट ओवर इट तो मैंने सोचा कि ये लैमिनेशन कर लूँ ट्रांसपेरेंट कवर से सो दैट आई एम विद इन द लॉ, विद इन द रूल्स. आई एम नॉट ब्रेकिंग एनी लॉ. And the reason why I bought this bike is because I like this color, gun metal grey. So why should I change my color? And अभी वो उसको क्या बोलते हैं हम, थोड़ा हीट दे रहे हैं ताकि वो जो लैमिनेशन जो प्लास्टिक है उसको स्ट्रेच करके अच्छे से वो स्टिक हो जाए. A very busy guy. एक साथ 4-4, 5-5 काम ले लेते वो. और ये है जो भी उसमें जो एयर बबल्स होगा ही इज जस्ट ट्राइंग टू रिमूव इट. As I was doing this work, I could see many people coming because there was few people who wanted to do it on their bike. तो वो लोग वहाँ पर खड़े रह के देख रहे थे कि कैसा लग रहा है. इट वॉज लाइक उनके लिए ये मेरा बाइक जो था एक गिनी पिग जैसा था. तो इनफैक्ट दे टोल्ड मी दैट हम लोग देख रहे कि कैसा लग रहा है उसके बाद ही हमारे बाइक लेके. एंड बिलीव मी लाइक देवर मेरे ख्याल से वो शायद 1-2 दिन में लेके आएंगे अपने गाड़ी बिकॉज दे सिंपली अलाउड द फाइनल आउटकम. As you can see, the front surface is almost done. Now we are going for the bottom side. And as I told, like I'd gone to few places and they were like insisting on just covering up my half tank and giving me some ridiculous codes amounts like which was not worth it. But here Yusuf bhai, he was very clear that he told me that he is going to cover up my full tank. So guys, we are almost done. अपना छोटा भाई यहाँ पर कुछ फाइनल टचेस दे रहे हो. जस्ट राउंडिंग ऑफ ऑल दोस एजेस and making it smooth so that it doesn't peel off.
वट एवर जो एक्स्ट्रा जो ऊपर का है वी जस्ट कट इट आउट. आई थिंक अनदर 5 to 10 minutes more and we are done. टैंक का जो काम था वो जो सरफेस लैमिनेशन वो तो हो गया पूरा. अभी हम लोग जो मडगार्ड है मडगार्ड वो यूसुफ भाई ने बोला कि पूरे कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा करके जो एक्सपोज पार्ट है वो फ्रंट साइड होता है उसका मडगार्ड का. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू जस्ट लैमिनेट द फ्रंट पार्ट ऑफ द मडगार्ड एंड देन वी आर डन. So the same process like cleaning the surface area to remove any dust particles और उसके बाद अब ये लैमिनेट करेंगे. आई थिंक अनदर 5 minutes more to go. सो गाइस आई कुडंट टेक द वीडियो. जो फाइनल आपको जो दिखाना था वो नहीं हो सका क्योंकि बाय द टाइम ये जो पूरा लैमिनेशन करके हो गया एक बार स्टार्टेड पोरिंग करके एंड मुझे थोड़ा टेंशन था मेरे मोबाइल का तो इसके लिए मैंने आपको पूरा जो वीडियो है वहाँ पर नहीं दिखा पाया. एज यू कैन सी ऐसा देखा जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा है. आई हैव गॉट द सेम कलर. मेरा गन मेटल ग्रे है. इट इज़ स्टिल द मैट फिनिश दिया है उन्होंने. और इसमें एक एडवांटेज ये होगा कि अगर मैं कुछ अगर टैंक बैग रखूँ या फिर अगर मेरा जो नॉर्मल ऑफिस में मैं जाता हूँ जो बैग है वो फ्रंट में रखूँ तो यहाँ पर स्क्रैचेस नहीं आएगा. वो एक मुझे बेनिफिट मिल रहा है. और कल को अगर समझो आफ्टर से जब तक भी चल रहा है ये 6 months या 1 year जो भी है उसके बाद अगर मैं कवर निकालूँ तो भी आई गेट दैट न्यू फिनिश. टैंक एकदम अच्छा होगा. उसमें स्क्रैचेस भी नहीं होगा. सेम वे मैंने यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये जो फ्रंट एरिया है तो इतना पोर्शन मैंने खाली उसको कवर किया है. सो दिस इज़ द मोस्ट जो ओपन जो क्या बोलते हैं जो बाहर का साइड है जिसमें स्क्रैचेस आने की चांसेस ज़्यादा है. तो ये पार्ट को भी मैंने उसको लैमिनेट कर दिया है. दैट्स इट. ठीक है.